یہ عرض کیجیے گا 2025 پاکستان کی سیاست میں کیسا رہا اور 2026 میں ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ 2025 میں ایسا کیا ہوا جو آپ چاہیں گے 2026 میں نہ ہو، اور کیا ایسا ہو گیا جو آپ چاہیں گے 2026 میں نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر سال جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں اپنی ایک زندگی کے ساتھ آتا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ 2025 کے بعض پہلو ایسے ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکیں گے، اور 2025 کے سال نے جو پاکستان کو عزت دی ہے اور احترام دیا ہے اس خطے میں اور پوری دنیا کے اندر معرکہ حق کی شکل میں، کہ جس میں ہمیں اپنے پرانے ماضی کی محرومیاں اور دکھ جو تھے، بلکہ 71 سے لے کے اب تک کی جو ایک تذلیل اور ایک منفی رویوں کو ہم نے فیس کیا تھا، ان سب سے نجات پانے کے لیے ہماری قوم اور ہماری افواج نے ایک ایسا معرکہ پیش کیا دنیا کے سامنے کہ آج پاکستان کے ہر شہری جو ہے وہ کم از کم امید محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو قابل احترام اور باعزت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد، نصف صدی کے بعد جو ہے ہمیں ایک بہت ہی مضبوط اچھی خبر ملی ہے۔ تو اس کو اور اس کے بعد جو دنیا کے اندر پاکستان کا مقام اور حیثیت بنی ہے، اس چیز نے بھی بہت زیادہ قوم کو بھی اعتماد دیا ہے اور ہمیں بھی اعتماد دیا ہے۔ اب اور یہ ایک آؤٹ کم بھی تھا ملک کی عام مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی نمائندہ افواج کی کامیابی کا ایک بہت بڑا وہ تھا، ایونٹ تھا۔ اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر، وہ یہ ہے کہ 25 کے اندر ہم اپنے اندر سیاسی طور پہ اگر دیکھیں تو ہم اپنی مفاہمت کے راستے نہیں کھول سکے، ہم سیاسی ٹکراؤ کو کم نہیں کر سکے، اپنی معیشت کو ہم حکومتی سطح پہ نہیں سنبھال سکے، اور عوام کی جو مزری ہے اور عوام کی جو غربت ہے اس میں ہم کسی قسم کی بہتری نہیں لا سکے، ہم اپنے کاشتکار کو اعتماد نہیں دے سکے۔ تو یہ وہ کمزوریاں ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ لیکن میں جب اس کو اوور آل دیکھتا ہوں تو میں اس وقت 2025 کا ایک اور جو مختلف پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہماری معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ حکومتی پالیسیز اور حکومتی جو فیصلے تھے ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے ایک نیا اکانومی کا ایک نیا انجن ہم نے کریٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کی افواج کے تحت جو چلنے والی معیشت ہے، پاکستان کی دفاعی معیشت اور پاکستان کی جو دفاعی سروسز ہیں اور پاکستان کی جو دفاعی پروڈکٹس ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر ایک نیا ایونیو کھلا ہے۔ اور وہ اس وقت تو ابھی چونکہ بالکل آخر کی بات تھی تو اس لیے اس کے اوپر ابھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آگے بڑھنے کا ایک نیا وہ ہے، امکانات کا راستہ ہے، جس میں آپ ڈیفنس سروسز بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈ کا ایک دنیا کی ٹریڈ میں ایک میجر جو پارٹ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیفنس کا ہوتا ہے اور اس کی سروسز بھی ہیں۔ تو وہ ہم نے ایک نیا اچیو کیا ہے ٹارگیٹ ود دی بیکنگ آف آر پرفارمنس in the war between India and Pakistan۔ بالکل سر، دفاعی لحاظ سے تو ہمیں بہت کامیابی ملی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے، دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اگر سیاسی طور پر سر دیکھا جائے تو عمران خان کی رہائی کے لیے 2025 میں بڑی تاریخیں جو ہے پی ٹی آئی والے جو دیتے رہے ہیں کہ نومبر میں رہا ہوں گے، دسمبر میں رہا ہوں گے، اب کچھ ہونے لگا ہے، کل کچھ ہونے لگا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا، ایون کہ 2025 کے آخر میں ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو 2026 جو ہے آپ کے خیال میں کیا عمران خان کی رہائی کا سال ہوگا یا پھر مزید سختیاں اور سزاؤں کا سال ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو اصل میں یہ جو معاملات ہوتے ہیں سیاسی معاملات، اور اس میں اختیار تو ہوتا ہے حکومت کے پاس۔ کسی کو کسی سیاسی
कैदी को या किसी अपोजिशन के किसी बंदे को बंद कर दे या छोड़ दे, ये अख्तियार हुकूमत के पास है। और हुकूमत जो है वो इस वक्त मुझे इस मूड में नहीं नजर आ रही, क्योंकि वो समझती है कि अगर इमरान साहब के साथ उनकी रिकन्सिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जो कि मुल्क के मफाद में है, तो उसके नतीजे में वो समझते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन को उन्होंने बाहमी एक टकराव की कैफियत में रखा हुआ है, वो शायद कम हो गया, तो उनकी बका और उनकी एग्जिस्टेंस जो है, क्योंकि वो अपने अपने होने के बारे में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, तो ये जो कमज़ोर एरिया है उनका, वो उन्हें इस चीज़ पे मजबूर करता है कि वो अपने मुखालफीन को जो है वो मतलब स्क्रीन से हटा के रखे। लेकिन इफेक्ट उसका दूसरा हो रहा है कि वो कैद में तो रख रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नैरेटिव्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और हर वक्त जो है वो ही चीज़ें पब्लिक में इस्टेब्लिश हो जाती हैं जिनको अपोजिशन इस्टेब्लिश करना चाहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फौरी तौर पे ये कहना कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये तो अभी एक, क्योंकि इमरान का ऑब्जेक्टिव भी नहीं है सिर्फ रिहाई। अगर इमरान खान साहब को सिर्फ रिहाई चाहिए हो, वो तो बड़ा आसान प्रोसेस है, आज जहाज का टिकट लें और बाहर चले जाएं, सब उन्हें फैसिलिटेट कर देंगे माजी की तरह, लेकिन ये उन्होंने करना नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो मतलब जो सूरत हाल बन चुकी है वो ये डिमांड कर रही है कि जो मुल्क के जो हमारे कायदीन हैं, सियासी कायदीन जी। और जो सीनियर सियासतदान हैं, जैसे मतलब मियां नवाज शरीफ साहब हैं और जरदारी साहब हैं, और जैसे एंड ऑफ द ईयर के अंदर दो ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, बल्कि तीन हुई हैं। एक तो ये हुई है कि जनाब आपने केपी के चीफ मिनिस्टर ने लाहौर का दौरा किया और हुकूमत ने उनको स्पेस भी दी, उनको ऑफिशियली एक्नॉलेज किया उनके दौरे को, थोड़ा बहुत उसमें मिस हैंडलिंग्स हुई हैं। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरी, केपीके के अंदर हुकूमत और मुल्की इदारों के दरमियान जो टकराव की कैफियत बनी हुई थी उसको भी केपीके की गवर्नमेंट ने कम किया है, और उसके नतीजे में जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ज्यादा, जिसे कहते हैं कि मजबूत शक्ल में हुकूमत खड़ी हुई है। और तीसरी डेवलपमेंट जो बहुत ही अहम है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो बयान है जिसमें उन्होंने चेयरमैन और जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी से डिमांड की कि आप रिकंसिलिएशन के लिए एक रोल प्ले करें। तो ये अगर इन सारी चीजों को मजबूत करके देखा जाए, तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये पुलिस सियासी क़यादतों ने अगर इस चीज को रियलाइज कर लिया कि बहुत लंबी मुद्दत तक उन्हें टकराव की कैफियत में से अपने लिए एग्जिस्टेंस निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका मनफी असर जो है वो मुल्क की मईशत और आवाम के मोराल और आवाम की जो मोटिवेशन है उसके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन तो ये जरदारी अगर साहब, हुआ तो मुफाहमत की फिर बात तो तो दुरुस्त आपने की है, मुज़ाकरात की भी ऑफर्स हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट मूवमेंट की तैयारी भी हो रही है। आपने कहा कि वज़ीर आला केपी जो है लाहौर आए, उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस भी थोड़ा सा मिला, लेकिन स्पेस मिलते साथ ही हमने ये बयान भी देखा कि स्टेट मूवमेंट की तैयारी जो है उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो 9 जनवरी को कराची जाने का इरादा भी रखते हैं। तो आपको लगता है कि सूरत हाल और मामलात जो हैं वो ऐसे हैं कि उन्हें कराची में भी स्पेस मिलेगा, और जिस स्ट्रीट मूवमेंट की बात वो कर रहे हैं इससे जो उनके मकासद हैं क्या वो हासिल हो सकते हैं? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट की दो शक्लें हैं। एक तो स्ट्रीट मूवमेंट की ये शक्ल होती है कि पुरअमन तरीके पे आप सड़क पे आते हैं, प्ले कार्ड उठाते हैं या नारा लगाते हैं और अपनी बात करते हैं और अपने अपने इशू को आप पब्लिक के सामने रखते हैं। और एक सूरत वो ये होती है कि आप किसी गोरेला ग्रुप की तरह आते हैं और आप कहीं आके धरना दे देते हैं, उसके बाद सारी हुकूमती मशीनरी को जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और बस उसको डी डे बना लेते हैं। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की सियासत ना कभी कामयाबी दे सकी है और ना ही आइंदा देगी।
टकराव की सियासत और एक जत्थे की सियासत और एक अग्रेशन की सियासत, टकराव, ये चीजें जो हैं ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं होती। पॉलिटिकल प्रोसेस का ये हिस्सा होता है कि आप और ट्रैवल करना, कोई सड़क पे घूमना फिरना कोई मतलब कोई सियासी तारुफ तो नहीं है, कोई सियासी जुर्म तो नहीं है। कहीं भी जा सकता है कोई भी फर्द, पूरा मुल्क है, आइन की प्रोटेक्शन है। आई कैन गो एनीवेयर इन द कंट्री वेयर आई फील लाइक। तो इसलिए अगर वो कराची जाते हैं या गवादर जाते हैं या पसनी जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो जा सकते हैं। लेकिन ये अगर वो चाहे कि कराची जाके कराची को जाम कर दें और इस्लामाबाद आके इस्लामाबाद को जाम कर दें, मेरा ख्याल है कि इस चीज से अब पीटीआई को ग्रो करना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि सियासत और जमहूरी सियासत के अंदर कानून को हाथ में लेना और कार्य सरकार में मुदाखलत करना इस्तेहकाक नहीं होता सियासी पार्टियों का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो, और गालबन लाहौर के अंदर उन्होंने उन्हीं लिमिट्स में बिहेव किया है जिन लिमिट्स में उनको बिहेव करना चाहिए था। ये जो चंद अच्छी बातें बुरी बातें हो जाना, ये तो पार्टियों के अंदर भी हो जाती हैं। कब से हम, जब से हमने आंख खोली, अब ये तमाशे देख रहे हैं कि ये बुरी बात कर दी कोई ऐसे। और खवातीन के बारे में बात करना तो वैसे ही बहुत बुरा होता है, ऐसी बातें लेकिन होती नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अभी कराची जाना या कहीं भी जाना ये किसी टकराव की अलामत नहीं है। हाँ, वहां जाके उनका प्लान क्या है, स्ट्रीट, हाँ जी, अगर 8 फरवरी को मुजाहरे करने जरूर करें, पूरे मुल्क में जो है पुरअमन तरीके पे वो निकले और अपनी बात करके वापस चले जाए। लेकिन ये है कि जी अगर हम पूरे मुल्क को जाम कर देंगे, जाम जूम करना जो है ना, वो पाकिस्तान की सियासत में कभी किसी कामयाबी का नतीजा नहीं बना। पाकिस्तान की सियासत में वही सियासी गिरोह या पार्टियां कामयाब रहती हैं जो हुकूमत की आईनी हुकूमत की कानूनी हदूद को छोड़ते हुए जो स्पेस अवेलेबल होती है उसके अंदर अपनी मुज़ाहमत करते हैं और अपनी गुफ्तगू करते हैं और अपनी बात करते हैं। सर, ये तो सियासी तहरीक की बात हो गई ना, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात हो गई, लेकिन आप ये बताइए कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर बनाए क्या ये तमाम मकासद पीटीआई हासिल कर सकती है? उनकी सियासी और कानूनी मुश्किलात आपके ख्याल में कम हो सकती हैं? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें, इस वक्त जो उनकी मुश्किलात हैं वो तो हकीकत में हुकूमत पैदा कर रही है। लेकिन एक जो उन्होंने सीबीएम किया है केपीके के अंदर कि एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड वो मामलात जिनके अंदर हुकूमत का ताउन अवेलेबल होना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, उसके अंदर ज़बानी या बाज़ अमली रुकावटें जो पैदा की जा रही थी वो अब नए सीएम ने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं मुल्की इदारों के साथ उन इश्यूज के ऊपर जो इश्यू नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कि ये जो उनकी सीबीएम है, ये अगर इसी तरह जारी रही और उन्होंने कोई और इरेटिक एक्ट ना किया, तो इसके नतीजे में जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो गई हुई हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो भी खत्म होंगी। और एक और डेवलपमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान साहब का नाम इन्होंने पेश जी। किया पीटीआई ने। और अब हमारी इतलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मामले में स्पीकर को ये हिदायत की है कि उनको मुकर्रर कर दिया जाए। क्योंकि महमूद खान साहब के हमेशा से मियां साहब से एक बड़े करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों तरफ से इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई और गवर्नमेंट पार्टीज वर्सेस पीटीआई जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हो रही हैं, इनके नतीजे में टेम्परेचर्स को डाउन आना चाहिए। और सही। अगर जरदारी साहब ने केपीके के अंदर कोई आउट ऑफ बॉक्स इनिशिएटिव ले लिया गवर्नर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या पीटीआई को उसमें अकोमोडेट करने से मुतल्लिक, तो मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी बड़ी मूव्स हो जाएंगी कि इससे मुल्क का बड़ा फायदा हो जाएगा। और ये पार्टियां जो इस वक्त डैगर ड्रॉन बैठी हुई हैं और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के जो है, एक ने अपने पीछे पुलिस खड़ी की हुई है, दूसरे ने अपने पीछे अवाम खड़ी की हुई है। तो ये जो पुलिस के जोर पे खड़ी हुई पार्टियां हैं, ये अवाम के साथ मिलजुल के इनका भी फायदा हो जाएगा, उनका भी फायदा होगा कि उनको स्पेस मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा इससे मुल्क का होगा और मुल्क की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका होगा कि मुल्क में जब
अमन होता है मुल्क में, जब सियासी निस्बतन कम जी टकराव होता है, तो उससे मुल्क की मईशत पे मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारी मईशत जो है वो बहुत चैलेंजिंग जिसे कहते हैं सिचुएशन से गुजर रही है, और हुकूमत गुड गवर्नेंस देने में काफी हद तक नाकाम हो रही है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको यकीनी तौर पे सोसाइटी में मौजूद स्ट्रेसेस को रिमूव करना होगा, और जो रिसोर्सेज हैं, नेशनल रिसोर्सेज, उनको अवाम तक पहुंचाने के रास्ते बनाए। तो सर 2025 में तो आपने एक एफर्ट की थी मामलात को बेहतर करने के लिए, मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए, सियासी दर्जात कम करने के लिए। 2026 में कोई इरादा है आपका? जरा इस पे भी रोशनी डालिएगा। 2026 का जो इस वक्त, मैं तो, आपको पता है, हमारा तो काम ही यही होता है कि यही कुछ करते रहें, और मैं कभी भी बाहर प्रोमिनेंटली आके, या मतलब मीडिया उसके अंदर, स्पॉटलाइट के अंदर मैं कुछ करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन मैं तो सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अपने मुल्क के लिए, और अपने मुल्क की आवाम के लिए, और क़यादत के लिए, कि अल्लाह ताला इनके दिलों में नरमी पैदा करे, जी इनको एक दूसरे की बर्दाश्त का हौसला दे, और इनको इस चीज का अदराक दे कि ये मुल्क जो है, ये सबका है। और आज तक इस मुल्क में किसी सियासतदान को ताकत से एलिमिनेट दुनिया में कभी नहीं एलिमिनेट किया जा सका। कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला अवाम ने करना होता है। बिल्कुल सर, एक और बड़ा जब ये अहम फैसले नुक्ता सर आपने उठाया है